بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بلم تم بن باورا کا برتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کا نام بلم بن باورا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقا کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت سے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عزمند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا۔ اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بد نصیب دین موسوعی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلام تھا۔ یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والے کی یہ مراد ہو کہ یہ امید بھی اس کے مشابہ تھا۔ اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا، لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور کے زمانے کو بھی اس نے پایا، آپ کی آیات بینات دیکھی، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دیا۔ اسی نے بدری کافروں کے ماتم میں مریچے کہے، لی اللہ لیا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی، لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے قتی بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی، وہ قتی بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں تنا دیتے ہیں اور ہم قتی کے بچے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی۔ تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے یہ ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے اور کھلا فترہ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کی ہمراہی میں گئے، انہی جبارین میں بلام نامی یہ شخص تھا۔ اس کی قوم اور اس کے قرابت دار چا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے آپ بد دعا کیجئے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن قوم سر ہو گئی، یہ بھی لحاظ مرود میں آ گیا، بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامت چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی طیٰ میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ یہ بد نصیب کا فر ہو گیا، قوم جبارین میں جاملہ ور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بد دعا کروں گا تو وہ دفتہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے پاس تمام دنیوی ٹھاٹھ تھے، لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدھی پال رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے فندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند ابو یالی موصلی میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا کہ ایک دم اس سے ہٹ جائے گا، اسے پس پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار کے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟
फरमाया नहीं बल्कि तहिम्मत धरने वाला। बहरहाल वो दनीवी लज़ातों की तरफ जो पड़ा यहाँ तक के शैतान का पूरा मुरीद हो गया, इसे सजदा कर लिया। कहते हैं कि इस बलाम से लोगों ने दरख्वास्त की कि आप हजरत मूसा और बनी इसराइल के हक में बद्दुआ कीजिए। उसने कहा अच्छा मैं अल्लाह से हुक्म ले लूं। जब इसने अल्लाह ताली से मुनाजात की तो उसे मालूम हुआ कि बनी इसराइल मुसलमान हैं और इनमें अल्लाह के नबी मौजूद हैं। इसने सबसे कहा कि मुझे बद्दुआ करने से रोक दिया गया है। इन्होंने बहुत सारे थे, तहफ़ जमा करके उसे दिए, इसने सब रख लिए। फिर दोबारा दरख्वास्त की कि हमें उनसे बहुत खौफ है, आप ज़रूर इन पर बद्दुआ कीजिए। इसने जवाब दिया कि जब तक मैं अल्लाह ताला से इजाज़त ना ले लूँ मैं हरगिज़ ये ना करूँगा। इसने फिर अल्लाह ताला से मुनाजात की लेकिन इसे कुछ मालूम ना हो सका। इसने यही जवाब इन्हें दिया तो इन्होंने कहा देखो अगर मनाही मकसूद होता तो आपको रोक दिया जाता जैसा कि इससे पहले रोक दिया गया। उसकी भी समझ में आ गया, उठकर बद्दुआ शुरू की। अल्लाह की शान है बद्दुआ उन पर करने के बजाय उसकी ज़बान से अपनी ही कौम के लिए बद्दुआ निकली। और जब अपनी कौम की फतह की दुआ मांगना चाहता तो बनी इसराइल की फतह व नुसरत की दुआ निकलती। कौम ने कहा आप क्या गज़ब कर रहे हैं? इसने कहा क्या करूं, मेरी ज़बान मेरे काबू में नहीं। सुनो अगर बीच बीच मेरी ज़बान से उनके लिए बद्दुआ निकली भी तो कबूल ना होगी। सनवाब में तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो समझ लो कि बनी इसराइल बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपनी नौजवान लड़कियों को बनाओ सिंगार करा के उनके लश्करों में भेजो और इन्हें हिदायत कर दो कि कोई उनकी तरफ झुके तो इनकार ना करे। मुमकिन है बूझा मसाफरत लोग जिनाकारी में मुब्तला हो जाएं। अगर ये हुआ तो चूंकि ये हरामकारी अल्लाह को सख्त नापसंद है, उस वक्त उन पर अजाब आ जाएगा और ये तबाह हो जाएंगे। इन बेगैरतों ने इस बात को मान लिया और यही किया। खुद बादशाह की बड़ी हसीन वाव जमील लड़की भी बिन ठन कर निकली। उसे हिदायत कर दी गई थी कि सिवाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और किसी को अपना नफ्स न सुने। ये औरतें जब बनी इसराइल के लश्कर में पहुंची तो आम लोग बेकाबू हो गए, हरामकारी से बच न सके। शहजादी बनी इसराइल के एक सरदार के पास पहुंची। इस सरदार ने इस लड़की पर डोरे डाले लेकिन इस लड़की ने इनकार किया। उसने बताया कि मैं फलां फलां हूँ। उसने अपने बाप से बलाम से पचवाया, उसने इजाज़त दी। ये खबीस अपना मुंह काला कर रहा था जिसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी साहब ने देख लिया। अपने नेज़े से इन दोनों को प्रो दिया। अल्लाह ताला ने इसके दसतों बाज वाव कवी कर दिए। इसने यूं ही उन दोनों को छुरे हुए उठा लिया। लोगों ने भी इन्हें देखा। अब इस लश्कर पर अजाब रब बशकल तुम आया और 70,000 आदमी फौरन हलाक हो गए। बलाम अपनी गधी पर सवार होकर चला, वो एक टीले पर चढ़कर रुक गई। अब बलाम उसे मारता पिटता है लेकिन वो कदम नहीं उठाती। आखिर गधी ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे क्यों मार रहा है, सामने देख कौन है। इसने देखा तो शैतान लईन खड़ा हुआ तो ये उतर पड़ा और सजदा में गिर गया। अलगर्ज ईमान से खाली हो गया। उसका नाम या तो बिलम था, ये बलका का रईस था, इस्म आज़म जानता था लेकिन आखिर में दीन हक से हट गया। वालला अलम। एक रिवायत में है कि कौम के ज्यादा कहने सुनने से जब ये अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चला तो इसकी गधी बैठ गई। इसने उसे मार पीट कर उठाया। कुछ दूर चलकर फिर बैठ गई। इसने उसे फिर मार पीट कर उठा लिया। इसे अल्लाह ने जबान दी। इसने कहा तेरा नाश हो जाए तो कहाँ और क्यों जा रहा है अल्लाह के मुकाबले में उसके रसूल से लड़ने और मोमिनों को नुकसान दिलाने जा रहा है। देख तो सही फरिश्ते मेरी राह रोके खड़े हैं। इसने फिर भी कुछ ख्याल ना किया, आगे बढ़ गया। हिब्बान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से बनी इसराइल का लश्कर सामने ही नजर आता था। अब उनके लिए बद्दुआ और अपनी कौम के लिए दुआ करने लगा लेकिन जबान उलट गई। दुआ की जगह बद्दुआ और बद्दुआ की जगह दुआ निकलने लगी। कौम ने कहा क्या कर रहा है, कहा बेबस हूँ। उसी वक्त इसकी जबान निकल पड़ी, सीने पर लटकने लगी। इसने कहा लो मेरी दुनिया भी खराब हुई और दीन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। फिर इसने खूबसूरत लड़कियां भेजने की तरकीब बताई जैसे कि ऊपर बयान हुआ और कहा कि अगर इनमें से एक ने भी बदकारी कर ली तो इन पर अजाब रब आ जाएगा। इन औरतों में से एक बहुत ही हसीन औरत जो कनानिया थी और जिसका नाम कहती था, जो सूर नामी एक रईस की बेटी थी, वो जब बनी इसराइल के एक बहुत बड़े सरदार जमरी बिन शहूम के पास से गुजरी जो शमून बिन याकूब की
नस्ल में से था वो। इस पर फरीफता हो गया दलीरी के साथ। इसका हाथ थामे हुए हजरत मूसा के पास गया और कहने लगा, आप तो शायद कह देंगे कि ये मुझ पर हराम है। आपने कहा बैठक। इसने कहा, मैं आपकी ये बात तो नहीं मान सकता। उसे अपने खेमे में ले गया और इससे मुंह काला करने लगा। वहीं अल्लाह ताला ने उन पर तून भेज दिया। हजरत फहास बिन गेरार बिन हारून उस वक्त लश्करगाह से कहीं बाहर गए हुए थे जब आए और अपने हाथ में नेज़ा लिए हुए और इन्हें उठाए हुए बाहर निकले। कहनी को कुछ पर लगाए हुए थे। कहने लगे, या अल्लाह हमें मुआफ फरमा, हम पर से ये वबाल दूर फरमा दीख ले। हम तेरे नाफरमानों के साथ ये करते हैं। उनकी दुआ और इस फेल से तून उठ गया। लेकिन इतनी देर में जब हिसाब लगाया गया तो 70,000 आदमी और एक रिवायत की रूह से 20,000 आदमी मर चुके थे। दिन का वक्त था और कनानियों की ये छूकरियां सौदा बेचने के बहाने सिर्फ इसलिए आई थीं कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाएं और इन पर अजाब आ जाए। बनी इसराइल में अब तक ये दस्तूर चला आ रहा है कि वो अपने ज़बीहा में से गर्दन और दसत और सरी और हर कस्म का सबसे पहला फल खास की औलाद को दिया करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि उसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि खाली है तो हामता है और धतकारा जाए तो हामता रहता है। या तो इस मिसाल से ये मतलब है कि बलाम की जबान नीचे को लटक पड़ी थी जो फिर अंदर को ना हुई कुत्ते की तरह हामता रहता था और जबान बाहर लटकाए रहता था। ये भी मानी है कि इसकी जलालत और इस पर जमे रहने की मिसाल दी कि उसे ईमान की दावत इल्म की दौलत गर्ज किसी चीज ने बुराई से ना हटाया, जैसे कुत्ते की इसकी जबान लटकने की हालत बराबर कायम रहती है, ख्वाह इसे पांव तले रौंद दो ख्वाह छोड़ दो। जैसे बाज किफार मक्का की निस्बत फरमान है कि इन्हें वज़वाओ पनत कहना ना कहना सब बराबर है, इन्हें ईमान नसीब नहीं होने का। और जैसे बाज मुनाफिकों की निस्बत फरमान है कि उनके लिए तो अस्तगफ़ार क्रिया ना कर, अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। ये भी मतलब इस मिसाल का बयान किया गया है कि उनका फर्म मुनाफिकों और गुमराह लोगों के दिल बौदे और हिदायत से खाली हैं, ये कभी मुतमईन नहीं होते। फिर अल्लाह इस वाउजल अपने नबी को हुक्म देता है कि तो इन्हें पनतवाओ नसीहत करता रहा ताकि इनमें से जो आलम हैं वो गौर व फिक्र करें, अल्लाह की राह पर आ जाएं। ये सोचें कि बलाम मलून का क्या हाल हवा डाल देनी इल्म जैसी जबरदस्त दौलत को जिसने दुनिया की सफली राहत पर खो दिया। आखिर ना ये मिला ना वो, दोनों हाथ खाली रह गए। उसी तरह ही उलमा यहूद जो अपनी किताबों में अल्लाह की हदायतें पढ़ रहे हैं, आपके औसाफ लिखे पाते हैं, इन्हें चाहे कि दुनिया की तमामी फंस कर अपने मरीदों को खानस कर भूल ना जाएं, वरना ये भी उसी की तरह दुनिया में खो दिए जाएंगे। इन्हें चाहे कि अपनी अलमीद से फायदा उठाएं, सबसे पहले तेरी इताअत की तरफ झुकें और औरों पर हक को जाहिर करें। देख लो कि किफार की कैसी बुरी मिसालें हैं कि कुत्तों की तरह सिर्फ निगलने उगलने और शहवत रानी में पड़े हुए हैं। बस जो भी इल्म व हिदायत को छोड़कर ख्वाहिश नफ्स के पूरा करने में लग जाए वो भी कुत्ते जैसा ही है। हुजूर फरमाते हैं, हमारे लिए बुरी मिसालें नहीं, अपनी हवा की हुई चीज को फिर ले लेने वाला कुत्ते की तरह है, जूते करके चाट लेता है। फिर फरमाया है कि गनाहगार लोग अल्लाह का कुछ बगाड़ते नहीं, ये तो अपना ही खसारा करते हैं। इताअत मूली इत्तिबा हदी से हटाकर ख्वाहिश की गुलामी दुनिया की चाहत में पड़कर अपने दोनों जहान खराब करते हैं। ऐसी तरह की वीडियो और वकिया को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।